Welcome class 12. In today's video we will see the function of depository system in case of IPO, means initial public offer. What are the functions performed by the depository system when the company issue the security in initial stage? Okay, before this video, in previous video we had seen that the functioning of depository system in case of conversion of physical certificates into electronic form or the dematerialization process. Now in today's video we will see the functioning of depository system in case of initial public offer. So you can see there has the one diagram also has given. Okay, so like the concept you can understand with the diagram. First process has given here. In the very first, the investor who is the beneficial owner, first the beneficial owner submit the application form, means for allotment of shares, allotment of securities or allotment of any shares, debentures, whatever is there. So for that, the very first, the beneficial owner who is the investor first fill and submit the application for the allotment of security. So here the very first the investor submit his application for securities to the issuer company. Now issuer company is the company who issues the shares. जो सिक्योरिटीज़ को इशू करेगी, डिबेंचर्स को इशू करेगी, शेयर्स को इशू करेगी, दैट कंपनी इज नोन एज द इशूअर company. So very first the investor submit the application for the security into the issuer company, and thereafter the issuer company verifies the detail of the beneficial owner with the depository. उसके बाद after getting the application from the beneficial owner, so the issuer company verified the all detailed information of the beneficial owner. इट मीन्स इन्वेस्टर्स की सारी डिटेल्स को क्या करेगी, वेरीफाई करेगी, चेक करेगी इट इज़ वैलिड और नॉट, एंड किससे करेगी, फ्रॉम द डिपोजिटरी. ओके, एंड आफ्टर वेरीफाइड all the information, after verification of the beneficial owner's detailed information, name, address, occupation, extra, thereafter the depository send its report to the issuer company. डिपोजिटरी क्या करेगा, वेरीफाइड करने के बाद सारी रिपोर्ट, उस वेरिफिकेशन जो रिपोर्ट होगी उसकी, दैट विल सेंड बाय द डिपोजिटरी टू द इशूअर कंपनी. ओके, नाउ देयर आफ्टर द इशूअर कंपनी गिव्स डिटेल ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी टू द डिपोजिटरी. उसके बाद इशूअर कंपनी क्या करेगी, जो भी सिक्योरिटीज़ के अलॉटमेंट के लिए पूरा जो भी डिटेल्स रहेगा, द डिटेल्स ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़, all information will send by the issuer company to the depository. Now depository will be NSDL और CDL. अगर इंडिया में हो रहा है तो NSDL होगी या फिर CDSL होगी. ओके, so the all information related to the allotment that will send by the issuer company to the depository. Okay, now thereafter the depository credits the account of the beneficial owner. इसके बाद डिपोजिटरी क्या करेगी, डिपोजिटरी बेनिफिशियल मतलब जो इन्वेस्टर्स है उसके अकाउंट को क्रेडिट करेगी. क्रेडिट मीन्स क्रेडिट करेगी किससे, द डिपोजिटरी क्रेडिट द अकाउंट ऑफ द बेनिफिशियल ओनर विद द सिक्योरिटीज इन अ डीमेट फॉर्म. डीमेट फॉर्म में उसको डीमेट अकाउंट में क्रेडिट करेगी. मीन्स इलेक्ट्रॉनिक वे में क्या किया उन्होंने, उसको सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड कर दी है. ओके, so here the depository credits the demat account of the beneficial owners with crediting the securities in demat form. Okay, now उसके साथ साथ the depository also have to inform or intimate the DP. DP means the depository participant. मैंने आपको कल बताया था, द DP means the depository participant. इट इज़ द इंटरमीडियरी पर्सन. ये इंटरमीडियरी पर्सन होते हैं, दे एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द डिपोजिटरी एंड द इन्वेस्टर.
ये इन्वेस्टर्स एंड डिपॉजिटरी के बीच में एज एक्ट वर्क करते हैं. सो द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डील्स विथ डायरेक्टली कस्टमर. एक कस्टमर से डायरेक्टली डील करते हैं एंड इट्स दे सेंड द स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट periodically बिकॉज इनके ही अंडर में सारे इन्वेस्टर्स के अकाउंट्स होते हैं. ओके, सो दे फैसिलिटेट द डिमेटराइजेशन, दे फंक्शंस लाइक अ सिक्योरिटीज बैंक. ओके, ये सारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक वे में जो ट्रेड होते हैं उसको क्या करते हैं, सेटल करते हैं. ओके, सो दे आर आल्सो नोन एज द इंटरमीडियरी. ओके, बट द इंटरमीडियरी अपॉइंटेड बाय द डिपॉजिटरी. ये डिपॉजिटरी के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं. ओके, इनका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है. ठीक है, सो हियर द डिपॉजिटरी creating the accounts of the beneficial owner with the demat security. उसके साथ साथ the depository also intimate and inform the depository participant about the creating of the beneficial owner's account. जो बेनिफिशियल ओनर का अकाउंट उन्होंने क्रेडिट किया है विद द सिक्योरिटी, उसकी इन्फॉर्मेशन उसको देंगे डीपी को, मीन्स डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को. एंड देयर आफ्टर द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स after taking out the statement of account of the beneficial owner, डीपी क्या करेगा, जो बेनिफिशियल ओनर है उसके अकाउंट से, उसके डीमेट अकाउंट से उसके अकाउंट का स्टेटमेंट निकालेगा और वो स्टेटमेंट निकाल के किसको देगा, बेनिफिशियल ओनर को सेंड करेगा. ओके, सो दिस इज़ द टोटल वे ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द डिपॉजिटरीज इन केस ऑफ द IPO. Now you can see there has a one diagram has given. The very first you has given there, the very first has given the application for allotment which is given by the beneficial owner to the issuer company. beneficial owner किसको देगा, एप्लीकेशन देगा सिक्योरिटीज़ के लिए कि भाई मुझे ये सिक्योरिटीज़ चाहिए, किसको देगा, issuer कंपनी को देगा. एंड देयर आफ्टर द issuer कंपनी फर्स्ट बेनिफिशियल ओनर का वेरिफिकेशन करेगी. ओके, नाउ देयर आफ्टर द उसके लिए वो डिपॉजिटरी को सेंड करेगी. नाउ डिपॉजिटरी क्या करेगी, वेरिफिकेशन रिपोर्ट सेंड करेगी इश्यूअर कंपनी को, और इश्यूअर कंपनी अगेन डिटेल ऑफ अलॉटमेंट सेंड करेगी डिपॉजिटरी को अलॉट करने के लिए सिक्योरिटीज़. एंड देयर आफ्टर द डिपॉजिटरी क्रिएट करेगी सिक्योरिटी अकाउंट किसका, बेनिफिशियल ओनर का. नाउ देयर आफ्टर उसके साथ साथ वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को भी इंटीमेट करेगी अबाउट द क्रिएटिंग ऑफ द बेनिफिशियल ओनर्स अकाउंट. एंड देयर आफ्टर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इशू द स्टेटमेंट अकाउंट ऑफ द बेनिफिशियल ओनर. ओके, सो दिस इज द टोटल वे ऑफ द functions of the depository in case of IPO. We will meet in next video with the new topic. Goodbye, take care.